Hello students, welcome to BIMT YouTube channel. So students, this is a lecture of HR02, that is Performance and Reward Management. So today we will discuss our topic, that is regulatory compliance, including wage and pay commission. So what are the regulatory compliances regarding wage and pay commission? Pay commission is set up by Government of India. Government of India set up करता है pay commission को and gives its recommendations regarding changes in salary structure of its employees. और वो ही recommendations देता है regarding changes in the salary of an employee. तो pay structure भी basically Government of India के through defined है और वो ही changes बताते हैं कि किस तरीके के changes recommended है regarding the pay structure or salary structure of an employee. Since India's independence, 7 pay commissions have been set up on a regular basis to review and make recommendations on the work. इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में 7 पे कमीशन रिकमेंड किया गया, सेटअप किया गया और उसी के थ्रू पे स्ट्रक्चर को डिफाइन किया गया वर्क के हिसाब से ऑन पे स्ट्रक्चर ऑफ द ऑल सिविल एंड मिलिट्री डिवीजन्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो जितने भी सिविल या मिलिट्री डिवीजन्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उस टाइम पर पे स्ट्रक्चर जो 7 पे कमीशन के हिसाब से उन्हें पे करने की बात की गई थी. Headquartered in Delhi, the Commission is given 18 months from date of its constitution to make its recommendations. So headquarter का इसका it is in Delhi. So next objectives क्या है? Objectives of pay or wage board in the private or government organization. First objective is to establish a fair and equitable compensation offering similar pay for similar work. सबसे पहला तो यही objective है कि हमें इक्वल कॉम्पनसेशन पे करना चाहिए, सिमिलर पे करना चाहिए फॉर सिमिलर वर्क. इसके बाद टू अट्रैक्ट कॉम्पिटेंट एंड क्वालिफाइड पर्संस. कॉम्पिटेंट एंड क्वालिफाइड पर्संस को अट्रैक्ट करने की बात की गई है. देन टू रिटेन द प्रेजेंट एम्प्लॉइज बाय कीपिंग वेज लेवल्स इन लाइन विद कॉम्पिटिटिव यूनिट्स. देन the next is point number 4, to keep labor and administrative cost in line with the ability of organization to pay. Organization की ability कितनी है पे करने की, उस चीज को भी यहाँ पे ध्यान रखा जाएगा as per labor and administrative costs. To improve motivation and morale of employees and to improve union management relations. Union management relations improve करने के लिए, इसके अलावा employees को motivation के लिए, so these things are very much important. तो pay structure में तो changes होने जरूरी है. To project a good image of the company and to comply with legal needs relating to wages and salaries. So company को भी proper legal जो भी प्रोविजंस या फॉर्मेलिटीज हैं उन्हें फॉलो करना चाहिए रिगार्डिंग वेजेस एंड सैलरीज. इससे ऑर्गेनाइजेशन की इमेज या गुडविल भी अच्छी होगी. टू एस्टैब्लिश जॉब सीक्वेंसेस एंड लाइंस ऑफ प्रमोशन वेयरएवर एप्लीकेबल. देन टू मिनिमाइज चांसेस ऑफ फेवरेटिज्म व्हाइल assigning the wage grades. तो ये पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स मिनिमाइज हो जाती है क्योंकि एक फिक्स सिस्टम है पे स्ट्रक्चर का और वो सबको इक्वली पे किया जाएगा. Then the following principles should be observed in the wage and salary administration. तो कुछ principles हैं wage and salary administration के. The first one is wage policy should be developed keeping in view the interest of all concerned parties. सारी concerned parties को ध्यान में रखकर wage policy बनानी चाहिए. कौन कौन सी parties? Employers, employees, consumers and the society. Then wage and salary plans should be sufficiently flexible or responsive to changes in internal and external condition of the organization. तो internal and external conditions के organization की उनमें भी changes लाएं या ऐसा plan हो wage and salaries का जो flexible nature का हो. Efforts should be made to ensure that differences in pay for jobs are based on variations in job requirements such as skill, responsibility, efforts and mental and physical requirements. तो efforts में देखिए उनकी skills क्या है, qualifications क्या है, इस तरीके की चीजों के according भी pay structure में differences रखे रहने चाहिए. Then wage and salary administration plans must always be consistent with overall organizational plans and programs. Organizational plans and programs को ध्यान में रखकर ही wages या salary structure define करना चाहिए. Wage and salary
with the social and economic objectives of the country. Social and economic objectives को भी ध्यान में रख के wage and salary administration plans बनाने चाहिए. For example, equality in income distribution and controlling inflation. Then these plans and programs should be responsive to the changing local and national conditions. Then wage and salary plans should expedite and simplify administrative process. Then workers should be associated as far as possible in the formulation and implementation of wage policy. तो wage policy के formulation and implementation के टाइम पे वर्कर्स को भी उसमें इन्वॉल्व करना चाहिए. An adequate database and a proper organizational setup should be developed for compensation determination and administration. तो proper database और proper organizational setup भी required है. Then the general level of wages and salaries should be reasonably in line with that prevailing in labor market. Labor market में क्या चल रहा है ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा जब हम जनरल लेवल वेजेस एंड सैलरीज का डिफाइन करेंगे. Then there should be a clearly established procedure for hearing and adjusting wage complaints. अब वेज के रिगार्डिंग कंप्लेंट्स भी हो सकती हैं तो वहाँ पे प्रॉपर कंप्लेंट्स को सुनने के लिए प्रॉपर एक प्रोसीजर होना चाहिए जहाँ कंप्लेंट फाइल की जा सके. This may be integrated with the regular grievance procedure if it exists. और अगर ऐसा कुछ है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं regarding the wages, तो there should be a proper grievance procedure or setup to sort it out. Then the worker should receive a guaranteed minimum wage to protect them against conditions beyond their control. तो वर्कर्स को एक guaranteed minimum wage तो मिलना ही चाहिए जिससे वो किसी भी तरीके की कंडीशंस या प्रॉब्लम्स को फेस कर सके. Prompt and correct payments to the employee should be ensured and arrears of payment should not be accumulated. ये सारी चीजों को भी ध्यान रखना होगा. Next, the wage and salary payments must fulfill a wide variety of human needs, including the need for self-actualization. तो वेज एंड सैलरीज पेमेंट कैसी होनी चाहिए, इस टाइप की होनी चाहिए. वेजेस या सैलरीज जो ऑर्गेनाइजेशंस ऑफर कर रही हैं वो इस तरीके से होना चाहिए या इस तरीके से पॉलिसी बनी होनी चाहिए कि जो भी वेजेस या सैलरीज एम्प्लॉयज रिसीव कर रहे हैं वो उन वेजेस या सैलरी से अपनी ह्यूमन नीड्स को प्रॉपरली फुलफिल कर सके. जैसे हम मैस्लोस थ्योरी की बात कर रहे हैं, हमने पढ़ी हुई है, मोटिवेशनल थ्योरी है, उसमें भी क्या है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एक स्टेज आती है. तो यहाँ पे भी हम वही बात कर रहे हैं कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग अपनी प्रॉपर ह्यूमन नीड्स को फुलफिल कर सके टिल द स्टेज ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. देन वेज पॉलिसी एंड प्रोग्राम शुड बी रिव्यूड एंड रिवाइज्ड पीरियडिकली in conformity with changing needs. तो वेज एंड पॉलिसी प्रोग्राम्स जो भी डिसाइड किए गए हैं एक बार फाइनल कर दिए, दोबारा उसमें कोई किसी तरीके का वर्क नहीं होगा या डिसीजन चेंज नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि इन्फ्लेशन, महंगाई भी बढ़ सकती है, सारी चीजें हो सकती हैं. तो वेज पॉलिसीज या प्रोग्राम्स जो हैं वो टाइम टू टाइम पीरियडिकली रिवाइज्ड अप होने चाहिए जिससे कि इन कन्फर्मिटी विद चेंजिंग नीड्स, चेंजिंग जैसे कि एनवायरमेंट, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में चेंजेस है, इन्फ्लेशन है, कुछ भी चीजें हो सकती हैं, उनके अकॉर्डिंग वेज पॉलिसी में भी रिवीजन होना जरूरी है. फॉर रिवीजन ऑफ वेजेस a wage committee should always be preferred to the individual judgment in order to prevent bias of a manager. अब जब भी वेजेस की रिवीजन की बात की जाती है तो एक वेज कमेटी बैठाई जाती है, उनसे वेज कमेटी शुड ऑलवेज बी प्रेफर्ड टू द इंडिविजुअल जजमेंट. तो फिर इंडिविजुअली जजमेंट्स लिए जाते हैं रिगार्डिंग द वेजेस एंड सैलरी, जिसकी वजह से खाली मैनेजर के डिसीजन पे ऑर्गेनाइजेशन वर्क नहीं करती क्योंकि मैनेजर कभी कभी बायस भी हो सकता है. सो देयर इज अ प्रॉब्लम एट द साइड ऑफ मैनेजर भी हो सकती है. तो इसीलिए अलग से वेज कमेटी बिठाई जाती है जिसके थ्रू डिसीजंस लिए जाते हैं, रिव्यू अप किया जाता है रिगार्डिंग व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस इज नीडेड इन वेज पॉलिसी. So these are some of the points, total 15 points under the principles in wage and salary administration. तो wage and salaries administration की अगर हम बात करें तो हम जब wage and salary administration करेंगे तो हमें कुछ principles को follow करना है, उन्हें दिमाग में रखना है. So these some of the points we should keep in mind while deciding regarding wage and salary
पॉलिसी और अदर थिंग्स। तो ये चीजें हमारे दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए। तो इसमें सबसे बड़ी चीज तो यही है, रेगुलेटरी कंप्लायंस इंक्लूडिंग वेज एंड पे कमीशन की गवर्नमेंट ने क्या और स्टेप्स लिए हैं रिगार्डिंग वेज एंड पे के, और इसके लिए उन्होंने पे कमीशन सेट की गवर्नमेंट ने, और गवर्नमेंट पे कमीशन में स्ट्रक्चर्स को, सैलरी स्ट्रक्चर्स को रिवाइज अप करता है, और अकॉर्डिंग टू द कॉम्पिटिटिव या अकॉर्डिंग टू जितनी भी इन्फ्लेशन है, महंगाई है, इनके हिसाब से उन्हें रिव्यू अप भी किया जाता है पीरियडिकली, और ये जरूरी भी है। नहीं तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की अगर सैलरी सेम ही चलती रहेगी हमेशा, तो महंगाई कितनी भी होगी तो वो उसे फेस नहीं कर पाएगा, उसके साथ अपने खर्चों को मैनेज नहीं कर पाएगा। तो पे कमीशन इसीलिए सेटअप की जाती है कि टाइम टू टाइम वो पीरियडिकली रिवाइज अप की जा सके, वो चेंज की जा सके, जिससे कि अपना प्रॉपर कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो हर लेबर, हर एम्प्लॉय प्रॉपरली उठा सके, समझ सके, ठीक है ना। तो इसी के रिगार्डिंग है ये, क्योंकि इससे पहले भी हमने अभी मिनिमम वेजेस एक्ट पढ़ा था इससे प्रीवियस लेक्चर में कि मिनिमम वेजेस एक्ट क्या है, तो उसमें भी हमने यही पढ़ा था कि एटलीस्ट सम मिनिमम वेजेस शुड बी फिक्स्ड फॉर आवर एम्प्लॉय। हम लेबर के लिए, एम्प्लॉय के लिए कुछ मिनिमम वेजेस फिक्स करें, और ये स्टेप भी गवर्नमेंट ने लिया था, और फिर मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 बनाया गया था। फिर एक चीज और यहाँ पर पे कमीशन से पहले हमने पढ़ी है, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट पढ़ा था। इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट में भी हमने यही पढ़ा कि देयर शुड नॉट बी अ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। वहाँ पर भी हमने पढ़ा मेल और फीमेल में, मेन एंड वीमेन में किसी तरीके का कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अगर वो दोनों ही सेम नेचर ऑफ वर्क या इक्वल लेवल ऑफ वर्क कर रहे हैं तो उनको इक्वल लेवल ऑफ सैलरी मिलनी चाहिए, क्योंकि ये आज के टाइम में भी बहुत जगह डिफरेंसेस हैं। तो इसको खत्म करने के लिए भी गवर्नमेंट ने अपना प्रॉपर एक्ट बनाया हुआ है, तो उसके थ्रू डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने की बात की गई है रिगार्डिंग द जॉब की इक्वल रेम्यूनरेशन पे होगा वेदर मैन और विमेन। तो यहाँ पे हमने उसके बाद बात करी, जब हमने ये दोनों एक्ट पढ़ रखे हैं, ऑलरेडी हमारा इसके ऊपर डिस्कशन हो चुका है। तो आज हम बात कर रहे हैं वेज एंड पे कमीशन पर। तो वेज एंड पे कमीशन भी यही कहता है कि पे कमीशन ये कह रहा है कि वेजेस तो ऑफर होनी होनी है, बट वेजेस में भी कुछ एक सिस्टम होना चाहिए, एक वेज एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी होनी चाहिए, उसके थ्रू वेजेस में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द मार्केट, अकॉर्डिंग टू डिमांड, क्या चीज़ों में इंक्रीज हो रहा है तो उनमें भी इंक्रीज होना चाहिए सैलरी या वेजेस में उनकी, जिससे वो भी प्रेजेंट कंडीशन को मीट कर सकें, अपने खर्चे मैनेज कर सकें। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारी रेगुलेटरी कंप्लायंस इंक्लूडिंग वेज एंड पे कमीशन में है। पे कमीशन गवर्नमेंट के थ्रू सेट की जाती है, गवर्नमेंट डिसीजन लेती है रिगार्डिंग व्हाट इज द मिनिमम वेजेस, या कब उसको चेंज करना है, कितना % चेंज होना है। तो ये सारी ही चीज़ें, और जितनी भी कंपनीज एंड इंडस्ट्रीज हैं उन्हें बनाए हुए गवर्नमेंट के पे कमीशन के रूल्स को, प्रोविजंस को फॉलो करना होता है। सो इट इज कंपल्सरी फॉर ईच एंड एवरी इंडस्ट्रीज। तो ये सारी ही चीज़ें हमें ध्यान रखनी है एज HR। अगर हम स्पेशलाइजेशन में पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि भाई ये चीज़ें HR में हैं या हमने ये पढ़ा है, इसको हम और इलाबोरेट कर सकते हैं और डिटेल में पढ़ सकते हैं। बट जो हम यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं वो अगर आपको थोड़ा भी क्लियर है कि हाँ इस चीज़ में ये था, अब इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट से समझ में आता था कि सबको इक्वल पे करना चाहिए, बट मेन फोकस किस पे किया गया, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पे फोकस किया गया कि मेन एंड विमेन को इक्वल पे करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो सेम नेचर ऑफ वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके की चीज़ें सारी हमने यहाँ पर पढ़ी, और जिसमें हमने आज अभी टॉपिक कंप्लीट किया पे कमीशन, कि व्हाट इज पे कमीशन और किस तरीके से क्या प्रिंसिपल्स को हमें ध्यान में रखना है व्हाइल डिसाइडिंग वेजेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी। सो आई थिंक कि आपको क्लियर हुआ होगा। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।